یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ معزز سامعین اور ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور مبارک ترین نام میں یہ خاکسار خادم نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ خداوند کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آج یہ خوبصورت ترین موقع آپ کے ساتھ پھر سے میسر آیا کہ خداوند کے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو میں اور آپ مل کر پاک روح کی تحریک سے سیکھنے والے ہو سکیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جیسے ماضی رفتہ میں خداوند اپنے پاک اور زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشتے رہے، آج بھی بخشیں گے۔ آج کے دن ہم بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب یعنی مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ اور اس کے 20 باب پر غور کر رہے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ مل کر اس سے پہلے ہم نے اس 20 باب کی پہلی 4 آیات پر غور و خوض کر لیا ہے۔ آج آپ کے ساتھ مل کر میں اس 20 باب کی 5 اور 6 2 آیات پر سیکھوں گا۔ خدا کے کلام میں آیا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ عزیزو، آئیں خدا کے کلام کو سیریسلی لیں۔ آخری زمانہ ہے، آخری دور ہے، اور یہ خدا کے کلام کی آخری کتاب اور آخری سندیسہ یعنی میسج ہے۔ اس کو ہم دل سے قبول کرنے والے ہوں اور اس ایمان کے ساتھ کہ خداوند آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ڈھیروں برکات عنایت فرمائے۔ یاد رہے کہ جب ہم اس ٹیکسٹ یعنی متن پر غور کرتے ہیں، یعنی 5 اور 6، 5ویں اور 6 آیت پر، تو بہتر ہوگا کہ میں 4 آیت بھی آپ کے لیے تلاوت کروں تاکہ کچھ پتہ تو چلے کہ پس منظر میں کیا ہے۔ اور اس 4 آیت میں پھر سے کہوں گا، مکاشفہ 20 کی 4، 5 اور 6 میں لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر کیا؟ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ 5ویں اور 6 آیت کی تلاوت کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس 4 آیت میں کیا ہے۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد زمین پر مصیبت کا زمانہ ہوگا، اور اس مصیبت کے زمانے سے وہی لوگ دوچار ہوں گے جنہوں نے آج یہ کہا، اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، یعنی جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، مسیح خداوند پر ایمان نہیں لائے، وہ مصیبت کے زمانہ سے دوچار ہوں گے جو 7 سالہ ٹائم پیریڈ ہے۔ اس کے بعد مسیح خداوند
आसमान से अपनी दुल्हन यानी कलीसिया के साथ, क्योंकि वो तो पहले ही उठा ली गई थी, अब कोहे जैतून पर आकर अपने पांव टेकेंगे। और कोहे जैतून जकरिया 14 बाब में लिखा है कि वो दो हिस्सों में मुनकसम हो जाता है, आधा पहाड़ एक तरफ आधा दूसरा। और उसके बाद मसीह खुदावंद 1000 साला अपनी बादशाही को कायम करेंगे। इस 1000 साल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि मुकद्दस पतरस कहते हैं कि खुदा की निगाह में एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक दिन 1000 बरस के बराबर हो, तो फिर 1000 बरस अंदाजा कर लीजिए कि कितनी तवील और लंबी ये बादशाही खुदावंद यीशु मसीह की होगी। और इस दौरान इस बात को याद रखें कि वो मुर्दे जो मुसीबत के जमाने में 1,44,000 बनी इसराइल में से आने वाले गवाहों और उन 2 गवाहों की गवाही के वसीला से खुदा की तरफ तौबा करके रजू लाएंगे। अगरचे अब वो डायरेक्ट आसमान पर तो जाने से रहे क्योंकि कलीसिया उठा ली गई है, लेकिन अब ये लोग जिंदा होकर उस 1000 साला बादशाही में दाखिल होंगे। एक दफा फिर इस आयत के इख्तिताम पर गौर कीजिए, लिखा है जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। यानी यूं लगता है जैसे ये हो चुका है। खुदा जिस काम का इरादा करते हैं वो हो चुका होता है, अगरचे लिटरली ये वाकया अभी नहीं हुआ, लेकिन खुदा के डॉक्यूमेंट्स में ये काम ऑलरेडी हो चुका है, जो मुस्तकबिल करीब और बईद में होगा। ओके, मुसीबत के जमाने के मुर्दों यानी मसीह यस्सु में, मुझे यूं कहना चाहिए कि खुदा पर ईमान लाने वाले मुसीबत के जमाने के मोमिनीन की क़यामत है ये। अब आयत 5 समझने में आसान होगी। लिखा है, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। ओके, इसका मतलब यह है कि कुछ और मुर्दे हैं जो अभी जिंदा नहीं हुए, लेकिन इस 1000 साल की बादशाही के बाद वो मुर्दे भी जी उठेंगे। ओके, आगे क्या लिखा है? पहली क़यामत यही है, यानी मुर्दों का जी उठना। क़याम से लफ्ज क़यामत निकला है, जिसके माना ठहरना, कायम होना, उठ खड़ा होना की तरफ इशारा है। ओके, यहां हम पहली क़यामत की बात देखते हैं। आयत 6, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। किनकी बाबत बात हो रही है? जो मुसीबत के जमाने में मसीह की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वालों की, कि वो मुबारक भी है और मुकद्दस भी है क्योंकि वो इस पहली क़यामत में शरीक हुए हैं। और फिर लिखा है, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। कौन सी दूसरी मौत बात करूंगा? बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। अब बात हमारी समझ में आ चुकी है। मुसीबत के जमाने के एंड पर
मुसीबत के जमाने में मारे जाने वाले शुहदा, मोमिनीन का जी उठना कब? जब मसीह खुदावंद अपनी आमद सानी के सेकंड पार्ट में, सेकंड फेज में, हिस्से में जमीन पर आएंगे। तो पहले हिस्से में वो जमीन पर नहीं आएंगे, बादलों पर, बामुताबिक थिस्सलुनीकियों के नाम लिखे गए खत के। और अब क्या होगा? वो मुर्दे जी उठेंगे, शुहदा, और मसीह के साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो अभी मुर्दों में से जी नहीं उठे, उनको जी उठना है। 3 तरह से यहां पर बात हो रही है। एक क़यामत, दूसरी क़यामत और फिर तीसरी क़यामत का। मैं अभी बताता हूं कि इससे क्या मुराद है। एक तो ये कि जब अभी, कल, 100 साल बाद, मुझे मालूम नहीं कब, जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तो एक तो वो मसीही मोमिनीन को जो जिंदा होंगे आसमान पर उठा ले जाएंगे, और जो मसीह यीशु में मर चुके होंगे, बाय द वे ये मरने का लफ्ज या इस्तिलाह उन पर इस्तेमाल नहीं होती, फिट नहीं आती, यूं कहना चाहिए जो मसीह में सो गए होंगे, वो जी उठेंगे और वो मसीह के साथ आसमान पर उठाए जाएंगे, बादलों पर। ये कलीसिया का उठाया जाना है। ये कभी भी वकूअ पजीर हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। मसीह के कलीसिया के उठाए जाने के बाद मुसीबत का जमाना जमीन पर होगा, और वह मुसीबत का जमाना ऐसा जिसमें खुदा की तरफ गवाही पर ईमान लाकर रजू लाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देना पड़ेगी। ओके? और फिर जब मसीह मुसीबत के जमाने के एंड पर जमीन पर आएंगे, तो ये मुर्दे जी उठेंगे। तरतीब के एतबार से ये दूसरी क़यामत है, अगरचे यहां पर पहली क़यामत का जिक्र है। तीसरे नंबर पर वो जिन्होंने आज भी मसीह को कबूल नहीं किया, मुसीबत के जमाने पर भी मैं भी मसीह पर ईमान नहीं लाए, वो बेदीन और गुमराह और शैतान के हथकंडे हैं। ऐसे लोग, ऐसे बेदीन, नाखुदा, नाफरमान, जिन्होंने खुदा के निजात बख्श इंतजाम को कबूल नहीं किया, वो तमाम के तमाम लोग अब इस 1000 साला बादशाही के बाद जी उठेंगे। खुदा के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना 5 बाब और उसकी 28 और 29 के मुताबिक भी, और फिर कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के मुताबिक भी, पहले खत के मुताबिक भी, थिस्सलुनीकियों के मुताबिक भी, मुकाशफा 4 की 1 के मुताबिक भी, मुकाशफा 20 की 4 के मुताबिक भी जो आज हमने तलावत की, और 20 की 12 के मुताबिक भी मुर्दे जी उठेंगे। और मसीह खुदावंद खुद फरमाते हैं, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए अज्र मेरे पास है। कैसे? उनके कामों के मुवाफिक। पहली क़यामत वाले मोमिनीन और मसीह यीशु पर मुसीबत के जमाने में ईमान लाने वाले मोमिनीन, इनकी अदालत वैसी नहीं होगी जैसी अदालत बाद में 1000 साला बादशाही के बाद में लोगों की होगी। वो अदालत
गंधक और आग से जलने वाली झील में रसीद किए जाने से मुताल्लिक है। अब कोई एक्सक्यूज वहां पर नहीं होगा। लेकिन ये दो अदालतें, पहली क़यामत, दूसरी क़यामत, क़यामतें उन लोगों की हैं जो मसीह खुदावंद पर ईमान ला चुके हैं। इनकी अदालत इसलिए नहीं होगी कि इनको जहन्नम में फेंका जाए या फिरदौस में भेजा जाए। नो, अब इनके कामों के मुवाफिक अजर देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, और जितनी वफादारी से खुदावंद की सेवा की होगी, वैसे ही खुदावंद उनको सेहरे और ताज बतौर अवार्ड देंगे। अब आपके लिए यह सवाल है, मेरे लिए, खा आप यूट्यूब पर हैं, खा आप फेसबुक पर हैं, खा आप व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आप इन तीन क़यामतों में से कौन सी क़यामत में होंगे? वो जो सबसे आखिर पर है, जहां गंधक और आग से जलने वाली झील में फेंका जाएगा, या ये जो मुसीबत के जमाने के बाद होने वाली अदालत है, क़यामत है, उसमें आप जी उठेंगे? या फिर मसीह खुदावंद अगर आज आ जाए, तो अगर आप जिंदा होंगे, मैं भी, तो हम खुदावंद के साथ उठाए जाएंगे, और अगर जिंदा ना भी हुए तो मसीह हमें खुद जिला बख्शेंगे, जिंदा करेंगे, ताकि हम आसमान पर उठाए जाएं। इन तीन फेजेस में आप अपने आप को कहां पाते हैं? मैं अपने आप को इस पहले फेज में पाता हूं कि अगर आज खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो मुझे अपने साथ आसमान पर ले जाएंगे, और अगर 50 साल बाद आते हैं, मैं तो इस दुनिया में नहीं हूंगा, लेकिन मुझे वो जिंदा करके अपने साथ आसमान पर ले जाएंगे। कौन कितना जीता है, खुदा के रिकॉर्ड में है, और मसीह खुदावंद कब आएंगे कोई नहीं जानता। हालात इशारा करते हैं कि मसीह खुदावंद आने वाले हैं, लेकिन कोई डेट और कोई टाइम और कोई सन मैं फिक्स नहीं कर सकता। याद कीजिए कि यहां पर दो अल्फाज ऐसे लिखे हैं कि ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। बड़ी भेद की बात है, यह जिक्र करना जरूरी समझता हूं। ऐसों पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं। कौन सी दूसरी मौत, और ये कौन से ऐसे लोग हैं? ये ऐसे लोग, बाय द वे, ईमानदारों की तरफ इशारा है। मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हासिल करने वालों की तरफ इशारा है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी मौत। जब मैं बाइबल स्कूल में था और उलमाए बाइबल जिनके कदमों में बैठकर मैंने खुदा के कलाम को सीखा, और इवन आज भी मेरे पास ढेरों कुतुब और इंटरनेट पर तो बेशुमार बड़े मुस्तनिद खुदा के अजीम खुदाम की लिखी हुई कुतुब और उनकी तफासीर मौजूद है। मैंने यह सीखा कि जो शख्स एक बार पैदा हुआ, जो शख्स एक बार पैदा हुआ, वो 2 बार मरेगा। क्या मतलब है? देखिए, एक बार पैदा होना, एक ही बार पैदा होना है। निकोदेमस भी नहीं समझा था कि ये दूसरी पैदाइश से क्या मुराद है। लेकिन यहां हम जब 2 बार पैदा होने की बात करते हैं, तो एक तो फिजिकली पैदाइश है जो मैंने और आपने
बतने मादर से हासिल की बरसों पहले, लेकिन रूहानी तौर पर खुदा के कलाम के मुताबिक एक और पैदाइश भी है, और वो पैदाइश उस वक्त होती है जब हम मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करते हैं। इसको हम दूसरी पैदाइश या नई पैदाइश, नया जन्म कहते हैं। एक मां के पेट से पैदा होना और दूसरी पानी और रूह से खुदावंद पर ईमान लाने के जरिया से पैदाइश होना, यानी पैदा होने की तरफ इशारा है। अब जो एक बार पैदा हुआ वो 2 बार मरेगा। यानी अगर कोई फिजिकली बतने मादर से तो पैदा हुआ, लेकिन उसने नई पैदाइश हासिल नहीं की, एक ही पैदाइश हासिल की और मसीह यीशु को कबूल नहीं किया, नई पैदाइश नहीं पाई, उसका क्या होगा? वो 2 बार मरेगा। 2 बार? ऑफ कोर्स, एक तो फिजिकल मौत है, वो तो हर किसी को आनी ही आनी है। जिस्मानी मौत बड़े बड़े अजीम खुदा के लोगों पर आई, खा वो रूहानी थे, खा वो मालो मता में उठते बैठते सोते या सोने की चमच मुंह में लेकर पैदा हुए, और दूसरे वो लोग जो इस दुनिया में मसीह यीशु के बगैर है। फिजिकली पैदाइश तो है एक पैदाइश, जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो फिर दूसरी पैदाइश होती है। एक ही पैदाइश जो फिजिकल पैदाइश है, उस पैदाइश के सबब से इंसान 2 बार मरता है। फिजिकल मौत जिसका मैंने जिक्र किया, सिकंदर आजम जैसे लोग मर गए, मैं भी, वैसे मैं मसीह में सोऊंगा। लेकिन दूसरी मौत जिसका यहां पर जिक्र है, यह खुदा से अबदी जुदाई, अबदी हलाकत, जहन्नम की आग, ये उस तरफ इशारा है। ये 2 मौतें हैं। क्यों? मौत के माना भी जुदाई या सेपरेशन के हैं, खा वो रूह और जिस्म की जुदाई हो, खा वो खालिक और मखलूक की जुदाई हो। आप समझ रहे? एक पैदाइश पाने वाला 2 दफा मरेगा, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। जहन्नम की आग में, खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में वो नहीं होगा। लेकिन जो शख्स 2 दफा पैदा होता है वो 1 बार मरेगा। 2 दफा पैदा होना से मराद एक तो फिजिकली और दूसरा स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया। वो शख्स 1 बार मरेगा, यानी फिजिकल मौत। इस जिस्मानी मौत का होना जरूरी है क्योंकि हयात अबदी के दरवाजे से दाखिल होने के लिए इस जिस्मानी मौत का होना लाजिम और मलजूम है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज के इस कलाम के मुताबिक हम अपने आप की बाबत देखें कि रूहानी तौर पर हम कहां हैं। लिखा है वो शोहदा मुबारक भी हैं और मुकद्दस भी हैं, अलग किए हुए खुदा के जलाल के लिए, और इन पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं, बल्कि ये खुदा के और मसीह के काहिन होकर 1000 साल तक बादशाही करेंगे। मुकद्दस पतरस ने खुदाबंद यीशु मसीह से पूछा, हम तो अपनी बेड़ियां जलाकर आ गए हैं। बेड़ियां जलाने का वहां पर जिक्र नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये, हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए हैं, बताएं कि हमें क्या मिलेगा। और मसीह खुदावंद ने फरमाया कि क्या ये काफी नहीं कि तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे? क्या ये थोड़ा और छोटा आजाज और शर्फ की बात है? नो नो, इट्स ग्रेट। हमें खुदा का शुक्र अदा करने
اور خدا کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے ہماری روحانی آنکھوں کو کھولا تاکہ ہم خداوند کو پہچان سکیں۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہن، خواہ آپ کا مذہب ریلیجن کوئی ہی کیوں نہیں، خواہ آپ دنیا کے کسی ہی خطے سے کیوں تعلق نہیں رکھتے، یا آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہی کیوں نہیں، خدا آپ کو پیار کرتا ہے، انتظار میں ہے کہ آپ اپنے پاپوں سے توبہ کر کے خداوند کی طرف رجوع لائیں، اور خداوند معاف کرنے میں سچے اور عادل ہے۔ اور اگر آپ صدق کے دل سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لائیں تو وہ ابھی اور اسی وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، جہاں کہیں ہے اپنے سر رب العزت کے حضور عاجزی اور انکساری دکھاتے ہوئے جھکا لیجئے۔ اے قادر مطلق خدا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں اس خوبصورت اور زندگی بخش کلام کے لیے۔ او خداوند، ہمیں فضل بخشیے کہ اس کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرتے چلے جائیں۔ اور میرے ان ناظرین اور سامعین میں اگر کوئی ایسا ہے جس نے ابھی تک اپنا دل آپ کو نہیں دیا، پاک روح کی قدرت سے وہ مولڈ ہو اور اپنا جیون فلی آپ کے سپرد کرنے والا ہو، تاکہ آپ کا جلال اس کی زندگی سے کثرت سے ظاہر ہو سکے، گناہوں کی معافی حاصل ہو، ہمیشہ کی زندگی کا یقین ہو۔ اور میں ان تمام پیشنٹس کے لیے، خواہ وہ کووڈ کی لعنت میں مبتلا ہے، یا کینسر جیسی موذی مرض میں، کڈنی فیلیورز ہیں، ارتھرائٹس پینز ہیں، تھائرائیڈ پرابلمز ہیں، او خداوند کسی بھی طرح کی پرابلم کیوں نہیں، اپنے قدرت والے نام میں اپنے لوگوں پر شفا والا ہاتھ بڑھا کر ان کو شفا بخشیے۔ خداوند وہ تمام جو خاندانی حالات کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، روپے پیسے کے اعتبار سے انتہائی پست ہمت ہو گئے، آپ ان کی ہمت بندھائیے اور اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا انہیں فضل عنایت فرمائیے۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے۔ آمین اینڈ آمین۔ عزیزو، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی مرضی ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔